Okay, so we learned John chapter 4 verse 24. हमने योना अध्याय 4 के 24वां वचन सीखे। God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है, अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। So the word teaches us that those who worship him must worship him in spirit and truth. वचन ये हमें सिखा रहा है कि जो कोई उसका आराधना करते हैं उन्हें जरूरी है कि परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। So the word used there is in spirit, in truth. यहाँ शब्द जो इस्तेमाल किया गया आत्मा में और सच्चाई में। So can you say this with me? In spirit, in truth. आत्मा में और सच्चाई से। No, it was not true. You have to be a little more louder. और थोड़ा जोर से आप बोलिए। In spirit, in truth. आत्मा से और सच्चाई से। आत्मा से आत्मा और से और सच्चाई सच्चाई से। Okay. So when we say in spirit, we mean we understand from the scriptures that we don't worship God half-heartedly. जब आत्मा से हम कहते हैं इसके मतलब जो हम परमेश्वर की जब आराधना करते हैं तो हम जो है आधे मन से नहीं करते हैं। We worship God with all our heart. हम परमेश्वर की आराधना अपने संपूर्ण मन से करते हैं। From the inmost being. हमारी अंदर से हम उनका आराधना So there करते is हैं। no compromise in that. उसमें कोई समझौता नहीं। And you also saw the word which is used just before that. Must worship him in spirit. और ये शब्द को आप And ध्यान truth. दीजिए कि अवश्य है कि। So this is, especially in English, the word used is must. There is no other option. और अंग्रेजी में इस प्रकार से कहा है कि मतलब अवश्य है, इसमें कोई और कोई संकल्प नहीं है। No dilution in this. कोई इसमें मिलावट नहीं है। When we worship God, we worship him with all our heart. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम अपना आराधना अपने संपूर्ण मन से करते हैं। And when in the old covenant, when people were taking this for granted, God really was upset. जब पुराना नियम में जब लोगों को इसको यूं ही ले लिए तो परमेश्वर बहुत दुखित हुआ। And there is a verse in Matthew chapter 15 where Jesus says this, Matthew 15 verse 8 and 9. मत्ती 15वां अध्याय के वचन 8 और 9। The word says, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. यह वचन ऐसा बता रहा है कि मत्ती 15 अध्याय के 8 और 9 वचन, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों और धर्मोपदेशों को सिखाते हैं। So this is important for us to know that God is looking at our heart. इस बात को जानने की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जो है हमारा हृदय को देखते हैं। See, people can see what we are doing. लोग जो है हम जो कर रहे हैं उसे देख सकते हैं। People can see, okay, he is lifting up his hands. लोग जो देख सकते हैं कि वो अपने हाथों को उठा रहा है। Maybe she is kneeling down. और हो सकता है कि वो अपने घुटने टेक रही है। People are seeing. लोग देख रहे हैं। But God is looking at our heart. लेकिन परमेश्वर जो है हमारा हृदय को देख रहे हैं। For God, heart is more important. परमेश्वर के लिए हमारा हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है। And in this portion, what the Lord says is, these people draw near to me with their mouth, meaning they are so vocal in what they're saying, but their heart is not near. यहाँ परमेश्वर का वचन जो बता रहे हैं, ये जो लोग जो है अपने वचनों से आदर करते हैं लेकिन इनका मन जो है बहुत दूर है। Look at that verse. And honor me with their lips. So they draw near to me with their mouth, honor me with their lips, but their heart is far from me. वचन देखिए, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। And for God, it is easy to understand, or for God knows where our heart is. और परमेश्वर के लिए बहुत ही सरल है हमारा हृदय है कहाँ है करके। And for God, it is very important. और परमेश्वर के लिए हमारा मन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। So all of us need to know this fact that God is looking at our heart. और हम में से हर एक को इस तथ्य को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है हमारा हृदय को देख रहे हैं। His eyes are like blazing fire. उनका आंखें जो है एक आग के समान है। So if you've been to an airport यदि आप एयरपोर्ट गए हो तो and you have luggages with you, आपके सामान होते हैं and you would see a machine there, a machine.
वहाँ एक मशीन रखी होती है and they would ask you to keep your luggages on that. और वो उनसे आपसे कहते हैं कि आप अपने जो सामान है उस मशीन पर रखें And the luggages will go like this. It go like this. और वो सामान जो है अपने आप में से जाती रहती है। And on the other side, there is a policeman or some security personnel. वहाँ जो सुरक्षा कर्मी वहाँ रहते हैं अगली तरफ, He'll be watching in a TV वहाँ or a एक screen. टीवी रखी रहती है, उसमें वो देखते हैं आपका सामान। So outside it is packed so well. बाहर से आपका सामान जो है पूरी तरह से बंद है अच्छी से, But when it goes through that machine, what happens? लेकिन वो मशीन के अंदर से जब वो जाती है तो क्या होता है, So the things inside the machine will reveal what is there inside. जो उस बंदी हुई बक्से के अंदर जो रखी हुई है वो सारी चीजों को दिखाती है। So if there is any weapons inside, they will stop. उसके अंदर यदि कोई हथियार है तो वो लोग उसको रोक देंगे। Now, there are many other things which are banned, but just for example, if there is a knife inside, कुछ और भी कुछ चीजें होते हैं, निषेध होते हैं, ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंदर यदि चाकू या किसी प्रकार से ऐसी चीजें तो रोक देते हैं। they would ask you, open the luggage. तो आपसे कहेंगे कि अपने बक्से को खोलें, And we will say, then they will ask, okay, what is this? तो वो पूछेंगे कि ये क्या है, Then we will say, no, I took it to cut mango. तो आप कहेंगे कि मैं इसे आम काटने के लिए लाया। No, not allowed. नहीं, ये ले नहीं जा सकते आप। How did he figure that out? उसे कैसे उन्होंने पहचाने? With that machine. उस मशीन के द्वारा, It was able to see through that luggage. क्योंकि वो मशीन जो है उस जो बंदी बक्से के अंदर देख सकती थी। Can I show you one verse? क्या मैं आपको एक वचन दिखाऊं? Let's go to Hebrews chapter 4. इब्रानियों 4 अध्याय verse 12 and 13. 12 और 13 वचन। इब्रानियों 4 अध्याय 12 और 13 वचन। Yeah, so the word says it discerns the thoughts and intents of the heart. यहाँ बताया गया कि वो जो है मन की बातों को जांचता है। Can we read verse 13? I'll read in English. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. और 13 वचन, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। So when we come to worship God with all our heart. जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं तो हमें जो है परमेश्वर के अपने संपूर्ण मन से आराधना करना है। The word says everything is naked and open in his sight. और वचन बता रहा है कि उनके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है, Nothing is hidden. कोई भी चीज छिपी नहीं His है। eyes can penetrate inside our heart. उसके परमेश्वर के आंखें जो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर सकता So है। when we come to worship God, इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते pastor हैं, will like it when you lift up your hands. आप हो सकता है कि हम अपने हाथों को उठाते हैं, And pastor will like it. Pastor. पास्टर को ये पसंद आएगा। And worship leader will like, oh, I was singing this song. They were happy. तो जो आराधना का अगुवा है वो भी खुश हो जाए कि मैं ये गाना गाता हूँ, ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। And the people standing next to us would say, oh, that person, that sister who was standing next to me, what a fire she has. और आपके पास में बैठे वाले लोग भी देखेंगे, अरे मेरे पास में बैठे वाली वो बहन तो कितना उत्साह के साथ गा रही थी। Good. All of it is good. ये सब अच्छा है, But our hearts also should be in the right place. लेकिन हमारा हृदय भी सही जगह में होने की जरूरत है। Pastor cannot see our heart. पास्टर हमारे हृदय को देख नहीं सकते हैं। Worship leader cannot see the intents. आराधना अगुवे को हमारा इरादे के बारे में नहीं पता है। The person who is standing next to us doesn't know the thoughts. जो हमारा बगल में बैठे वाला व्यक्ति हमारे विचार को नहीं जानता है। But there are two eyes which goes inside our hearts. लेकिन दो आंखें जो है हमारे हृदय के अंदर जाती है। Read this verse again, verse 13. There is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. यहाँ 13वीं वचन, सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। So the word of God penetrates into our hearts. He searches everything. परमेश्वर का वचन जो हमारा हृदय में प्रवेश करता है और हमें जांचता है। So don't lack in zeal when we worship God. Don't lack in zeal, that अपना passion for God. धुन ना खोए
And जब परमेश्वर from the core of our heart, from the core of our being, we lift up our voices to God. हम हमारे अंदर से हमारे भीतर से परमेश्वर के लिए अपने आवाज को उठाएं और आराधना करें। Not half-heartedly, but wholeheartedly, we worship God. केवल मन से ही नहीं, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करें। Now it is the Spirit. So the word says, those of us who must worship God must worship in spirit and in truth. So our spirit is now connecting to the Spirit of God. यहाँ वचन बता रहा है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब हम आराधना सच्चे मन से करते हैं तो हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ता है। Now yesterday we learned we are tripart beings, we are spirit beings, we have a soul, we live in a body. हमने कल सीखे थे कि हम 3 भागों में हैं, हमारा शरीर है, हमारा आत्मा और हमारा प्राण है। So the spirit that God has given to us connects with Him. जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वो आत्मा जो है परमेश्वर के साथ जुड़ता है। So when we worship God, let our spirit connect with the Spirit of God. इसलिए हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़े। Worship is a spiritual activity. आराधना जो है आत्मिक कार्य है। What is the second part? The second part says in spirit and in दूसरा भाग क्या है? आत्मा से और सच्चाई से। So in spirit and in truth we must worship God. हमें जो है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। So no hypocrisy, no pretense. नो पाखंडी, ना दिखावा। We worship God according to the truth of God's word. हम परमेश्वर की आराधना जो है परमेश्वर के सत्य के साथ, परमेश्वर के वचन के सत्य के साथ करेंगे। So we worship God in spirit. इसलिए हम परमेश्वर की आराधना आत्मा से करेंगे and we worship God in truth. और परमेश्वर की आराधना सत्य से करेंगे। What is this truth? ये सत्य क्या है? Or what does it mean to say worship God in truth? और परमेश्वर की आराधना सत्य से करो, इसका मतलब क्या होता है? Worship God in truth means worship according to the truth of God's word or truth of God who God is. सच्चाई में सत्य से आराधना करो मतलब होता है कि परमेश्वर के वचन के सत्य से या परमेश्वर सत्य है इसको जानते हुए करना। What is truth? सत्य, परमेश्वर सत्य है। What is truth? What is truth? सत्य क्या है? Truth is the word of God. सत्य जो है परमेश्वर का वचन। And John chapter 17 verse 17 we read, sanctify them by your truth, your word is truth. यूहन्ना 17:17 बताता है कि आपके वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध कीजिए, आपका वचन सत्य है। John 17:17. Sanctify them by your truth, for your word is truth. So what is truth? Truth is the word of God. सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। So when we say we worship God in truth, we worship God according to the truth of God's word. जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को सत्य से आराधना करते हैं, इसके मतलब जो है परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। We worship God according to how it is prescribed in the word of God. हम परमेश्वर की आराधना सत्य से करना मतलब इस प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। Not like however I want, but according to the word of God. ये नहीं कि जैसे मैं चाहता हूँ उस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से परमेश्वर के वचन जैसा कहता है उस प्रकार से। We are free to take any mode of worship, but it always should align with the word of God. किसी भी तरीकों को हम आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो जो है परमेश्वर के वचन के साथ संगत करना चाहिए। No, there can be concerts or there can be big churches where they have a lot of people to lead in worship. There's a lot of choir, a lot of instruments, but there can also be churches where there is only one person singing. बहुत सारे ऐसे कलीसिया होते हैं कि बड़े होते हैं, बहुत सारे संगीत चलाने वाले या समूह होता है, कोयर होता है, लेकिन कुछ ऐसे कलीसिया भी होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति गाता है। Maybe one person is standing there holding guitar and leading a lot of people in worship. एक व्यक्ति खड़े होकर अपना गिटार को लिए हुए लोगों को आराधना में अगुवा कर सकता है। It doesn't matter how it is, but our heart matters and we must worship God in truth. कितने लोग आराधना में अगुवाई करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हमारा हृदय से फर्क पड़ता है कि परमेश्वर को हम कैसे आराधना कर रहे हैं। So if we worship when one person is leading worship, or if we worship in a huge concert, our attitude should be same, that I am worshiping my living God. जब हम आराधना करते हैं, एक व्यक्ति आराधना दल को चलाएं या एक कॉन्सर्ट में बड़े एक समूह में हम आराधना कर रहे हैं, तब भी हमारा हृदय जो है ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि मैं जो है अपना जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहा हूँ। Are you all with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? So God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. इसलिए परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि जो उससे आराधना करते हैं आत्मा और
सच्चाई से आराधना करें। Okay, let's try that, saying that verse again. Parameshwar, आइए वचन बोलने के लिए फिर से कोशिश करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और और सच्चाई सच्चाई से। से करें। Very good. Now, we will look into the Hebrew word of worship. हम अभी जो इब्रानी शब्द जो आराधना के लिए इस्तेमाल की गई है उसके बारे में हम And देखेंगे। there is one word which is there? Shokau. Okay, shokau in the Hebrew, it means to fall prostrate. जो इब्रानी शब्द में ये कहा जाता है उसके मतलब जो है अपने आप को साष्टांग परमेश्वर के सामने गिराना। And in Greek, we have this word proskuneo. और यूनानी शब्द एक है क्रुस्तूनियो, उसका मतलब It means kiss the hand or again feel prostrate before God. इसका मतलब होता है हाथों को चूमना या तो परमेश्वर के सामने अपने आप को गिराना। And in some, in olden days, this is how they used to come before the king. पुराने समय में इस प्रकार से ही लोग आते थे राजा के सामने। They would just bow before him in adoration. वो जो राजा के आदर में अपने आप को झुका लेते थे। So when we come before God, we can take a different posture in our body. No, it doesn't matter that if you are standing or sitting, you can also kneel down, you can also fall prostrate before God. जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते तो हम किसी भी प्रकार के अपने शरीर की हम झुक सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम घुटने टेक सकते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख साष्टांग गिरा सकते हैं। Because that is how we express our heart. क्योंकि इसी प्रकार से हम अपना हृदय को व्यक्त करते हैं। Now, what happens when we worship God? अब जब आराधना करते हैं तो तब क्या होता है? This is important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, let's pause here. Is there any question? Then we've been learning a lot of things. यहाँ हम रुकते हैं कि आपके पास कोई सवाल है, हम बहुत सीखते आ रहे हैं, उसमें से आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Especially related to praise and worship. खास कर स्तुति और आराधना के बारे में आपका यदि कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Okay, so the question is how to align your heart with the Spirit of God when you're surrounded by distractions. सवाल ये है कि अब चारों ओर आवाज में घेरे हुए हैं तो आप अपने आप को अपना आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ कैसे संगत कर सकते हैं? So the first thing I think we should remember is to know that God is unchanging. सबसे पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है ना बदलने वाला परमेश्वर है। So no matter what you and I are going through, He is the same God. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप और मैं किस में से होकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो वही परमेश्वर है। Let's take some examples. Let's take an example of a person who is sick. देखिए एक उदाहरण के तौर पे जो बीमार व्यक्ति को ले लेते हैं। Now this person comes to worship God. और ये बीमार व्यक्ति परमेश्वर के आराधना करने के लिए आता है। There are these thoughts of distraction that I think I will die with this disease. और उसके अंदर ऐसे एक विचार उसका ध्यान को भटका रहे कि वो बोल रहे अपने आप में सोच रहा है कि मैं इस बीमारी के कारण मर जाऊंगा। Doctors have said you have 1 year to live or 6 months to live. और डॉक्टरों ने 6 महीना 1 साल के लिए तुम जीवित रहोगे ऐसा बता दिए हैं। Now when this person comes to worship God, he or she must be so distracted by this thought. जब ये ऐसे व्यक्ति जब आराधना के लिए आया है तो उसके दिल में बहुत ही वो उसका ध्यान भटका होगा। The first thing that we need to do is this person should realize that He is an unchanging God. सबसे पहले इस बात को जानने की पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। The name of my God is Jehovah Rapha. मेरा परमेश्वर का नाम जो है यहोवा राफा है। What is the meaning of the word Jehovah Rapha? यहोवा राफा का मतलब क्या होता है? चंगा करने वाला. He is चंगा the करने God वाला who heals. परमेश्वर। He is the God who heals. वो परमेश्वर जो चंगा करने वाला। Did God keep any expiry date to that name? क्या उस नाम के लिए परमेश्वर ने कुछ तारीख डाली है कि यहाँ तक खत्म हो जाएगी करके? No. So that is the truth. So come to a revelation that He is an unchanging God. आइए इस प्रकाशन में पहुंच जाएं कि परमेश्वर जो है ना बदलने वाला परमेश्वर है। And the second and most important part is to bring our thoughts into captivity. और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारी विचारों को जो है कैद में लाएं। So 2 Corinthians chapter 10, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय verse 3 to 6, 3 से लेकर 6 तक के वचन। we read like this: the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God to pull down strongholds, to cast down reasoning and arguments,
and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, taking every thought captive unto the knowledge of God. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार Second, I'll शारीरिक just mention नहीं, that verse again. 2 Corinthians 10, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 4 से लेकर वचन 6 तक, 3 to 6. Okay. 2 Corinthians 10, 3 to 6. Yeah. 10वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 3 से लेकर 6 तक के वचन। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का और जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठते हैं खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हर हैं। एक भावनाओं को, every thought, हर एक भावनाओं को, take every thought into captivity. हर एक विरोध उठने वाली भावनाओं को हम कैद में ला लेते हैं। And can I just read the portion just before that? Every argument that exalts itself against the knowledge of God. इसलिए हम कल्पनाओं का और उन ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। Every high thing that exalts itself against the knowledge of God. हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। So what are these distractions? These are the things which are against the knowledge of God, isn't it? ये एक सारे जो ध्यान को भटकाने वाली चीज क्या है, ये सब परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाली बातें हैं। What should we do? We should bring that into captivity. हमें क्या करना चाहिए? इन सारे विचारों को कैद में लाना है। You say, no, I don't want to think like this. आप कह सकते हैं मैं इस प्रकार से सोचना नहीं चाहता I हूँ, reject this thought. मैं इन सारे अस्वीकार करता हूँ इन विचारों को। And trusting in the Holy Spirit, you say no to it. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर भरोसा कर इसको नहीं कहते हैं And bring that into submission. और उसे जो है अधीनता में लाते हैं। Okay? So, and this is a constant effort that we have to do. ये जो है लगातार हमें इसे प्रयास करते रहना है। See, distractions will come for all of us. हम सबके लिए जो ध्यान भटकाने वाली चीज तो ध्यान भंग करने वाली चीज तो आएगी, But we need to make a choice to bring it into submission. लेकिन हमें इस बात की चुनाव करना चाहिए कि उन सारे चीजों को अधीनता में लाने की। So we took this example of a person being sick. It can be any other area as well. हमने एक उदाहरण के तौर पे एक बीमारी के व्यक्ति लिए थे, लेकिन कोई भी चीज हो सकता है। You are here to worship God, then suddenly your girlfriend's picture comes to our mind. जब आप आराधना करते हैं तो आपकी जो लड़की दोस्त है वो आपके याद में आ रही होंगी। Girlfriend, you know, boyfriend, girlfriend, you know, right? Or maybe you're so holy. Okay, okay. So when any distraction comes, you bring that thought into captivity. No, I don't want to think about that right now. I'm here to worship God. कोई भी चीज आपका ध्यान भटकाने के लिए है तो उसे आप अधीनता में लाएं। आप ये बताएं कि मैं यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हूँ। So bring that thought into captivity and come into the alignment of God's word. उन विचारों को परमेश्वर की अधीनता में लाएं और आप जो है परमेश्वर के आत्मा के साथ संगत बनाएं। Is that okay, Ansh? Yes. Okay. Any other questions? कोई और सवाल? Not asking questions can mean two things. सवाल नहीं पूछना दो अर्थ हो सकता है। Either you understood everything, एक होता है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, or you did not understand anything. या तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। What should we take? हम इसमें से क्या लें? आपको पूरा समझ गया लें या कुछ भी नहीं समझा लें? Just one question, maybe it's out of subject. You know, Okay, in yes, traditional churches, you know, so they don't encourage clapping hands or saying hallelujah, something like that. Is that kind of services are in truth and spirit? Thank you for that Which question. happening in the, yeah, thank you. So, yeah, you wanna, yeah, yes. तो पारंपरिक कलीसिया में जो है हाथ उठाकर गाना, आराधना करना या हालेलुया करना ये सब मना है। क्या ऐसे आराधना सत्य और आत्मा से की जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं? So, I think what we learned yesterday and day before is in the scriptures we have what is the right way to worship God and praise God. हमने कल और इसके पहले भी हम सीखे थे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमें आराधना करना है। So we mentioned about lifting up of hands, clapping of hands, dancing, singing, shouting, celebrating, making a show.
kneeling down and worship. All of these are according to the truth of God's word. हमने सीखे थे कि हाथ उठाना, तालियां बजाना, नाचना, कूदना, चिल्लाना और घुटने टेकना, ये सारे बातें जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार है. Yeah, so when nobody can say you should not do this when the Bible says this is how you should worship. कोई भी ऐसा ना करे, नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि जबकि बाइबल कह रहे हैं कि इस प्रकार से आपको करना है. So worship in spirit and truth, as we said, in truth means it is according to the word, because the word is truth. जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करो का मतलब जो है सत्य, मतलब परमेश्वर का वचन है, वचन के अनुसार आराधना करना. So we cannot count that as worshiping in truth. इसलिए हम ऐसे आराधना को हम सत्य में आराधना कर रहे हैं ऐसा नहीं ले सकते हैं. And we cannot stop people from doing things which are not in the word of God. जो परमेश्वर के वचन में नहीं है उस है. Yeah, so we cannot stop people from I think you got the point. Right? So so we say we need to worship God according to the truth of what is prescribed in the word of God. हमें जो है परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के वचन में जैसे बताया गया है उस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करना है. Brother Philip, is that okay? Thank you, brother. I got it. Thank you. Yes, thank you. Yes. Yeah, any more questions here or online? कोई और सवाल? Yes. How can we feel Holy Spirit? How can we feel or experience Holy Spirit? Okay, so that's a very important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. There are two parts to it. इसमें दो भाग है. One is our emotions. एक जो है हमारी भावनाएं, The other part is the sovereign power of God. अगला जो है परमेश्वर का सार्वभौम शक्ति. God, so listen to this carefully. God created us. ये ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने हमें सृजा. God created our spirit, our soul, and our body. परमेश्वर ने हमारा शरीर, आत्मा, प्राण को रचा. So tell me something. If God created even our soul, जब परमेश्वर ने हमारे मन को या प्राण को रचा है, does He have the authority to touch the soul? क्या उनके पास ये अधिकार है हमारे प्राणों को छूने के लिए या हमारे मन को? So God can touch us. परमेश्वर हमें छू सकते हैं. And sometimes we can experience Holy Spirit in our senses. कभी-कभी हम जो है हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें हम महसूस कर सकते हैं. You have a separate subject called Holy Spirit. You will learn more in that. आपके पास पवित्र आत्मा का एक अलग विषय है, उसमें आप अधिक सीखेंगे. But I'll just mention it for our understanding. केवल मैं अपना हमारे समझ के लिए इसको बता रहा हूँ. For us as human beings, we have our 5 senses. हम मनुष्य के रूप में हमारे पास जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं. We can see, we can hear, we can smell, we can taste, we can touch. हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं. Touch. और छू सकते हैं. Right? So all of these are our physical senses. ये सब जो है हमारी भौतिक या शारीरिक हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं. Now when we study the word of God, there is also the spiritual senses. जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां जो है आत्मिक ज्ञानेंद्रियां भी है. So in the spirit we can see, in the spirit we can experience touch, in the spirit we can hear, and etc. और आत्मा में भी हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं और जो हम महसूस भी कर सकते हैं. So God in His sovereignty, He can touch us. और परमेश्वर अपने संप्रभुता के कारण हमें छू सकते हैं. So sometimes we experience that in our body. कभी-कभी उसको हम अपने शरीर में भी अनुभव करते हैं. Sometimes we hear His voice. कभी-कभी हम उसके आवाज को सुनते हैं. Sometimes He shows us. कभी-कभी वो हमें दिखाते हैं. And so these can be experienced in our emotions. और ये सब जो है हमारी भावनाओं में भी अनुभव कर सकते हैं. But that is according to the sovereignty of God. God decides. लेकिन ये जो है परमेश्वर की संप्रभुता में निर्भर है, ये परमेश्वर निर्णय लेते हैं. Okay? But on the other side, there is our emotions. और दूसरी तरफ में जो है हमारी भावनाएं हैं. So God touches us. God can touch us in our emotions. परमेश्वर हमें छूते हैं, परमेश्वर हमारी भावनाओं को छू सकते हैं. But we should not get carried away by human emotions. लेकिन हमें जो है हमारा मानवीय भावना है उसमें बहकर नहीं जाना चाहिए. Let's say, for example, I'm here. Let's say we are worshiping God. उदाहरण के लिए देखिए हम सब यहाँ आराधना कर रहे हैं.
and I did not feel anything. और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, That doesn't mean that God is not there. इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर यहाँ पर नहीं है। Does it make sense? क्या आ रहा है? So I'm here to worship God. Everybody is singing. यहाँ सभी लोग गा रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, I did not feel a heat in my body. लेकिन मेरा शरीर में कोई मैं गर्माहट को महसूस नहीं कर रहा हूँ। I cannot say that, oh, today's worship was not. आज का आराधना इतना कुछ खास नहीं था, Because it is something that we bring to offer God, isn't it? क्योंकि आराधना जो है हम ऐसी चीज को लेकर, परमेश्वर के लिए कुछ चीज को लेकर आ रहे हैं। So if we feel it or not, या हम उसको महसूस कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, we should not be carried away with emotions. और इन भावनाओं में बहते हुए नहीं जाना चाहिए हमें। But how can we experience God? लेकिन हम परमेश्वर की कैसा अनुभव कर सकते हैं? Expect Him. उसका अपेक्षा कर कर। And sometimes He touches us, sometimes He touches our soul. We get to experience that in our emotions. कभी कभी परमेश्वर हमें छूते हैं, हमारे प्राण को छूते हैं, कभी हम उसे अपना भावनाओं में महसूस करते हैं। But most of the time we get an understanding that He is here. और बहुत अधिक समय पे क्या हम इस समझ में आते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है। Amen. So that there is a knowing. You know that God is here. आप जान पाएंगे कि परमेश्वर यहाँ पर है। Is that okay? क्या ठीक है? So the key is to desire for it. इसको महसूस करने के लिए कुंजी जो है इसकी इच्छा रखना। And also remember, worship is something that we bring to God. It is not for us to feel anything good. आराधना एक ऐसी बात है, हम जो है परमेश्वर के लिए लेकर आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या महसूस कर रहे हैं। Right? It is not to make us feel good. It is to worship God, to honor Him. We are bringing honor to God. हमें क्या महसूस हो रहा है इसके लिए नहीं, हम जो है परमेश्वर को आदर देने के लिए उनकी आराधना करते हैं। But in that we may experience something. और उसमें शायद हम कुछ महसूस कर, अनुभव कर सकते हैं। Yeah. So if you want to experience, the key is to desire for it. यदि आप इसका अनुभव करना चाहते हैं, इसका कुंजी जो है इसका चाहत रखना। Is that okay? Okay. Any more questions? This subject very well explained, brother. Thank you very much. I can align with my emotions during my worship in my church. Thank you so much. Yes. Thank you. Praise God. So there is a course called the Holy Spirit. I think Pastor Jay Kumar is taking that. So in that you will learn a lot more in detail. How do you differentiate our emotions and the Holy Spirit ministering? And a lot of things you would learn in that. हमारे पास एक विषय है पवित्र आत्मा का, पास्टर जय कुमार शायद लेंगे, उसमें आप बहुत ही विस्तार से उसको पढ़ेंगे किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। And on Friday we would learn about listening to God in worship. So that time we'll explain a little more. और शुक्रवार के दिन जो है आराधना में हम परमेश्वर से सुनने के बारे में हम सीखेंगे। Right, at that time we'll explain how we receive from God in worship during the time of worship. उस समय हम आपको समझाएंगे कि आराधना के समय हम कैसे परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में सिखाएंगे। Everybody okay? क्या आप सब ठीक है? All right. So let's continue. आइए जारी रखें। Now what happens when we worship God? जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है? Remember, when we worship God, it does not change God. इस बात को याद रखें, जब हम आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर को नहीं बदलता। Oh, I worshiped God for 1 hour. Today, God is a little more, God is in a little more better mood. आज मैंने 1 घंटे के लिए उनका आराधना किया, इसलिए आज परमेश्वर जो है अच्छा एक मूड में होंगे। No, it doesn't change God. ये परमेश्वर को नहीं बदलता। Number one, it changes us. सबसे पहली बात जो है हमारे आराधना करने के द्वारा आराधना जो है हमें बदलती है। So keep your hands on your heart and say, worship transforms me. इसलिए अपने हृदय में हाथ रखकर कहें, आराधना मुझे बदलती है। Now, I want us to please turn our attention to Exodus chapter 34. मैं आपको निर्गमन 34वां अध्याय, Exodus is the second book of the Bible, 34. पुराना नियम के दूसरा किताब है, बाइबल का दूसरा किताब है, निर्गमन 34वां अध्याय And verse 27 to 30. और 27 से लेकर 30 तक का वचन। निर्गमन 34 27 से लेकर 30 तक के वचन।
Okay, one second. So now Moses has gone up to Mount Sinai. मूसा जो है सिनाई पर्वत पर चला गया. Now, what is happening here? Moses is having an encounter with God. यहाँ क्या हो रहा है? मूसा जो है परमेश्वर के साथ मुलाकात कर रहा है. Did you all get the verse? क्या आपको वचन मिला? निर्गमन 34 के 27वां वचन. Okay. Now, Moses, where is Moses? Moses is in Mount Sinai. और मूसा कहाँ पर है? मूसा जो है सिनाई पर्वत पर है. And God is now meeting with Moses. और परमेश्वर जो है अभी मूसा से मिल रहा है. Can you imagine that God Almighty is revealing a part of him to Moses? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है अपना हृदय को मूसा को प्रकट कर रहा है. He did not show the entire glory of himself to Moses, but we'll come to that later. परमेश्वर ने अपनी सारी महिमा को मूसा को नहीं दिखाए. हम इसको फिर से आएंगे. But God said, come to Mount Sinai, there I will meet with you. लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू सिनाई पर्वत पर आ, वहां तुझसे मैं मिलूंगा. So he gave the covenant और परमेश्वर ने उसे वाचा दी. and he said, write these words and I'm giving you this. इन वचनों को लिखो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ. And now 28. 28वां वचन. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. Yeah, yes. मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा. How many days? कितना दिन? Okay. So the word says he was there with the Lord for 40 days and 40 nights. वचन बता रहा है कि मूसा जो है यहोवा के साथ 40 रात दिन था. And the word says he neither ate bread nor drank water. और वचन बता रहा है कि उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया. So we should imagine हमें कल्पना करने की जरूरत है. 40 days, 40 nights, no food, no water. 40 दिन रात ना खाना ना पीना. Only the presence of God. केवल परमेश्वर की उपस्थिति. Are you seeing? क्या देखते हैं? Yes? हाँ, Now let's see what happened. आइए देखे क्या हुआ. 29. 29वां वचन. And it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand when he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. 29वां वचन. जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है. Now, can you imagine? क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं? Moses is spending time with God. मूसा जो है परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, Nothing else. कुछ और नहीं. No distractions. कोई ध्यान भंग नहीं. Just the presence of God. केवल परमेश्वर का उपस्थिति. And God is giving him the words to write. और परमेश्वर जो है वचन दे रहे हैं उसको लिखने के लिए. 40 days later, Moses is coming down. 40 दिन के बाद मूसा नीचे आ रहा है. What is happening? क्या हो रहा है? His face began to shine. और उसका चेहरा जो है चमकने लगा. What did he do? वो क्या किया? Just enjoyed the presence of God. केवल परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया. So we see that the Bible teaches us that the presence of God changed the physical body of Moses. यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो परमेश्वर का उपस्थिति जो है मूसा का शारीरिक जो दिखावट है उसको बदल दी. So worship or spending time in the presence of God, it changes us. इसलिए आराधना या परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताना जो है हमें बदलती है. Sometimes he touches our body and sicknesses move. कभी कभी वो हमारे शरीरों को छूते हैं और हमारी बीमारियां हट जाती है. And we've had several testimonies where people were healed just during the time of worship. कई सारे ऐसे गवाहियां हैं, लोग जो है आराधना के समय में ही चंगाई पाए हैं. No pastor went and laid hands. कोई पास्टर जाकर उन पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किए हैं. God definitely heals when we lay hand. That is another side. हाँ, हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही चंगा करता है. वो But अलग तरीका है. Just being in the presence of God, after that,
people were healed. लेकिन केवल परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के बाद लोग जो है चंगे हो गए हैं। I think a couple of weeks back we had one sister in our church. कुछ सप्ताह पहले हमारे कलीसिया में एक बहन है, So she was having terrible headache for I think around 4 or 5 days. She's been having. उन्हें जो है 3-4 दिन से बहुत ही ज्यादा सर दर्द था, And this is like a migraine, okay? This is terrible. जैसे कि माइग्रेन के जैसे, बहुत ही तकलीफदायक। And that's a time when we're having an extended time of worship at church. हाँ, उस समय जो हमारा कलीसिया में आराधना चल रही थी And we had asked earlier her to sing. और पहले उनसे हम कहे थे कि आप गाना गाना। So she was praying, God, I am going to sing and I want to experience your hands. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं गाना गाने चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपके हाथ को अनुभव करना चाह रही हूँ। So with migraine, she came to sing. और उनके सर दर्द, इतनी ज्यादा सर दर्द के साथ वो गाने के लिए आए हैं। After service, there is migraine. और सभा के बाद वो सर दर्द कहाँ गया? It went. चला गया, पूरी तरह से वो चंगे हो गए थे। Nobody laid hands on her. कोई उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, Nobody casted the demon out. कोई भी शैतान को नहीं भगाया, But the presence of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति। Amen. आमीन। So when you worship God, expect that. इसलिए जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो इस बात की अपेक्षा करें Lord, touch me, और कहें कि प्रभु मुझे छूइए, heal me. मुझे चंगा कीजिए। And God does that. और परमेश्वर ऐसा करते हैं। Now we just mentioned about Moses experiencing the presence of God in the physical body. हमने अभी बताया कि मूसा जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद और अपने शारीरिक तौर पे उन्होंने अनुभव किया। And Moses even did not realize that his face was shining. और मूसा भी इस बात को नहीं जान रहा था कि उसका चेहरा जो है चमक रहा है। But there is something interesting in the New Testament. लेकिन कुछ नया नियम में और भी रुचिपूर्ण है। 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18. दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 और 19 वचन। So in 2 Corinthians chapter 3, Apostle Paul is talking about what happened to Moses and the veil and the glory that he had. और यहाँ दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है मूसा के साथ क्या हुआ था और उस पर्दे के बारे में बात कर He रहा goes on है। to explain and comes to verse 17. और वो सारे समझाने के बाद और 17 वचन में आ रहा है। The word says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. यहाँ 17 और 18 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 और 18 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 वचन, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So the word says, we are being transformed in the presence of God. यहाँ वचन बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में बदलते जाते हैं। We see the image of God, the glory of God as in a mirror. हम ऐसे परमेश्वर की महिमा को इस प्रकार से देखते हैं जैसे हम आईना में देखते हैं। Meaning we are in the presence of God, we are worshiping, we are seeing God. जब आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, इसके मतलब जो है हम परमेश्वर को देख रहे हैं। We are being changed. हम जो है बदलते जाते हैं। So everybody say, I am being changed when I worship in God. जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ तो मैं बदलते जाता हूँ, मैं बदलते जाता हूँ। And to what are we becoming? क्या हम बन रहे हैं? The word says, being transformed into the same image. और यहाँ वचन बता रहा है कि उसी प्रकार से हम बदलते जा सकते हैं तेजस्वी रूप में। What does the same image means? Is the image of God. It is the image of Jesus. ये किसके रूप में बदलते जाते हैं? यीशु मसीह के रूप में बदलते जाते हैं। So when you and I spend time in the presence of God, we are being transformed to be like Jesus. इसलिए जब आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हम जो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। From glory to glory.
महिमा से महिमा तक, one level of glory to the next level of glory. एक स्तर के महिमा से लेकर अगली स्तर के महिमा तक, And we are being transformed. और हम जो है बदलते जाते हैं। So when we worship God, इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं our thoughts come in alignment to the word of God. तो हमारा विचार जो है परमेश्वर के वचन के साथ संगत करता है। God also tells us the actions which are not right, and we bring it before the Lord. और परमेश्वर ये बात भी बताते हैं कि जो कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार या उनके अनुसार नहीं है, उसे हम परमेश्वर के सम्मुख में लाते हैं। Our motives, our intents which are not right, He brings it into the alignment. हमारी इरादे, हमारी जो विचार हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उसको हम वचन के अनुसार लाते हैं। We become more like our Lord Jesus. हम जो है अधिक से अधिक तक जैसे यीशु मसीह के जैसे बनते हैं। Because as we worship God, the presence of God, it transforms us. क्योंकि जैसे हम आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमें बदलती है। Now, I don't know if you have done this. Imagine in the wardrobe, like in your almara, हाँ, आपके जब अलमारी खोलते हैं and imagine you have kept a lot of clothes there, और बहुत सारे कपड़े उसमें रखी हुई है, and you keep something which give fragrance in that section. उसके अंदर आपने कुछ सुगंधित द्रव रखा है, And after a while, when you take off one cloth from that, और उसमें से एक कपड़ा जब आप निकालते हैं and you smell it, you get the smell of that. उसमें उसका आपका सुगंध आता है। Yes or no? हाँ या नहीं? What happened? क्या हुआ? This cloth was near to the thing which was giving the smell. जो अच्छा जो सुगंधित इत्र आपने रखा है उसके पास बगल में ये कपड़ा रखी हुई थी, इसलिए उसका सुगंध इसमें आने लगा है। The more you and I walk closely with God, enjoy the presence of God, it transforms us. जितना ज्यादा हम परमेश्वर के निकटता में और नजदीकी में रह के जीते हैं वो हमें बदलता है। Do you want to be transformed? क्या आप बदलना चाहते हैं? How many of us desire to be more like Jesus? हमें से कितने लोग ये चाहत रखते हैं कि यीशु मसीह जैसे हमें बदलना है? The word teaches us to enjoy His presence. और वचन बता रहा है कि उसके उपस्थिति का आनंद उठाओ। Now, in the library, you will find this book called The Presence of God. यहाँ किताब के जगह लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इस नाम का किताब। You can do an extra reading. आप इसको एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। And those of us watching online, you can search for the book, The Presence of God, and APCW, or you will get that for free. और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी अगर हमारे वेबसाइट में जाकर इस किताब की खोज करेंगे तो वहां आपको मिलेगा। And it talks in detail about how do we experience the presence of God and what happens to us. और इस किताब में जो है परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताने से हमारे लिए क्या होगा, ये सारी बातों को विस्तार से बताया गया है। So what we are learning is when we worship God, we are being transformed. हम क्या सीख रहे हैं? जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम बदलते जाते हैं। It doesn't change God, but it changes us. जो हमारी आराधना करना परमेश्वर को नहीं बदलती है लेकिन वो हमें बदलती है। So keep your hands on your heart and say, आप अपने हृदय में हाथ रख कर कहें, when I worship God, जब मैं परमेश्वर की आराधना करता God हूँ transforms me. परमेश्वर मुझे बदलता है। I become more like Jesus. मैं मसीह जैसे बनूंगा। I become more like Jesus. मैं मसीह जैसे बनता जाऊंगा। Amen? आमीन। All right. The second point is, दूसरा बिंदु, when we worship God, we experience the presence of God. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं। So we said that when we worship God, it transforms us. हमने कहा कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो हमें बदलता है। And when we worship God, we experience Him. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उनका अनुभव करते हैं। I think we'll take a break and come back to this point. हम ब्रेक लेने के बाद फिर इसको आकर देखेंगे।